Assalamualaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today our topic is Isaac type personality questionnaire. You can say it is the test. Okay. First of all, we are going to look here. When Isaac basically he was born in Germany in 1916, and at the age of the 18 he was transferred from Germany to England, and he became a psychiatrist. Their famous books was mostly 75 books before their death, that is in 1997. Eysenck basically devoted his life to the study of the temperaments. What is temperament? Look at carefully. It's mean that part of the personality which is rooted in our genes and biological process. Temperament क्या चीज़ होती है? All those things which you inherit from your parents. ठीक है, जो चीज़ पैदाइशी तौर पे बाय नेचुरल आपको मिलती है, ये आप लोगों के पास टेम्परामेंट होते हैं. His starting point was classical Greek, four temperaments together with the Pavlov studies of the dog, etc. First temperament, that is the phlegmatic. It's mean those individuals who has phlegmatic temperament, they are usually calm and stable. Second one, that is the choleric. It's mean that is the irascible and quick tempered, यानी इजीली उनको जिसे कह सकते हैं ना सिंपल अल्फाज में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना एट्सेट्रा. नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज़ द सेंग्विन. इट्स मीन दे आर द चीयरफुल होते हैं, दे आर मोस्ट ऑप्टोमिस्टिक होते हैं, दे लुक द ईच एंड एवरी थिंग इन द पॉजिटिव सेंस. एंड लास्ट वन, दैट इज़ मेलनकॉलिक. ये कौन से आ जाते हैं आपके पास? दीज आर द सैड एज वेल एज द डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं. ये तो बेसिकली थी दीज आर द फोर टेम्परामेंट्स. और इन्हीं टेम्परामेंट्स पे पहले जो है वो डिफरेंट ग्रीक फिलोसफर्स ने भी काम किया था. ठीक है, एज वेल एज विद द पैसेज ऑफ टाइम पावलव ने भी इस पे टू सम एक्सटेंट वर्कआउट किया. आइजनिक का जो मेन कंट्रीब्यूशन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कि that he talk about the personality dimensions, that is about the introverts and stable, introvert and unstable, extrovert and stable, and extrovert as well as अनस्टेबल. ठीक है, यानी आइजनिक ने सिंपल अल्फाज में अगर आप याद रखना चाहो तो आप ये देखो, आइजनिक ने तीन पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात की थी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और न्यूरोटिसिज्म. ठीक है, अच्छा इसमें आपके पास क्या आ जाता है? द स्किल स्टेबल, अनस्टेबल, मैयर at increasing level of neuroticism. ठीक है, Eysenck term neuroticism does not mean that the person actually have the neurosis, only that they are more inclined to get one. Here you want to say that it is not necessary they have neurotic tendencies, but they may be inclined to do it. यानी जैसे होता है ना कि एक शख्स है, एक तो होते हैं बीमार है, ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है ना जिसमें उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो एंड दैट बेसिस हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे न्यूरोटिक हमारे पास इस सेंस में आ जाता है. उसके बाद आपके पास आ जाता है कि देयर द कंटिन्यूस स्किल्स, सो वन कैन course also scores in the middle. For example, only 50% unstable and only 50% introvert, etc. हमारे पास इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट अकॉर्डिंग टू आइजनिक क्या होता है? आइजनिक बिलीव दैट एक्सट्रोवर्ट पीपल हैव अ काइंड ऑफ innate black out a repression function in the brain. If, for example, they have had a car accident, they typically don't remember anything afterward. Precisely because they remember nothing, they will not hesitate to place themselves behind a steering wheel the day after they have been discharged from the hospital. If they had a bad social experience, let's say they let's say let's say they have humiliated in front of a big audience at a party, or they have been rejected by a woman they love, then their brain effective repression functioning make them, in the simple words, if you want to say that if their belief about extroverted individual, they are most outgoing individual,
They are not feel hesitate to say anything. They say what they want to say. They are not going to care about the society, what society will think about them, etc. In simple words, you can summarize it in this way. Next is that is introvert, extrovert, according to Eisner. Very introverted people have no blackout function at all. They remember with painful accuracy and in all details. यानी इंट्रोवर्ट जो इंडिविजुअल होते हैं मोस्टली वो इस तरीके से करते हैं कि माइन्यूट सी डिटेल जो होती है, दे आर मोस्टली अवर सेंसिटिव होते हैं. दे रिमेंबर ईच एंड माइन्यूट डिटेल ऑफ एनी एक्सीडेंट, especially when they fall in the front of any other individual. They are not going to think about their pain, etc. They continuously think it what the other people are going to say about them, etc. ठीक है, ये इंट्रोवर्ट की. और इसमें आपके पास क्या आ जाता है कि इंट्रोवर्ट पीपल विल रिमेंबर इन डिटेल हाउ the whole party laughed heartily when he could not remember the text of the song, and also probably sang out of tune. For the rest of his life, he will remember the impulsive. What is the meaning of impulsive? Impulsive बच्चों ये होते हैं कि you are going to show your action on the basis of your impulse rather than uses of your कॉग्निशन. यानी आपके माइंड में जो भी चीज़ आई है इम्पल्स, आप अपने कॉग्निटिव लेवल को यूज़ करने के बजाय जैसे जो आपके माइंड में आया है आपने वो रिएक्ट कर लिया. दैट इज़ द इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट अकॉर्डिंग टू दिस. नाउ कम टू जी तो स्टूडेंट्स, look this diagram very carefully because it is really comprehensive. According to Eisner, when he is talk about the just two dimension, the first one that is about their extroversion as well as the introversion, and the second one is stable versus unstable. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रोवर्जन की, तो एक्सट्रोवर्जन की मेन क्वालिटीज़ आपके पास कौन सी आ जाती हैं? दीज आर मोस्टली सोशेबल, outgoing, talkative, responsive, easygoing, lively, carefree, and leadership qualities these people have. And they like the parties, outgoing activities, etc. ठीक है, extroverted आपके पास ये आ जाते हैं. That is according to Eisner. As well as हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे इंट्रोवर्ट. तो इंट्रोवर्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन से आ जाते हैं. These are like the quiet, unsociable, reserved, pessimistic. Pessimistic in this sense, mostly they look the negative aspect of anything. While another end, optimistic आपके पास क्या होते हैं? They look the पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द थिंग. तो एक्सट्रोवर्टिव जो होते हैं वो मोस्टली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वाइल ऑन अदर हैंड इंट्रोवर्टेड जो हैं दीज आर द मोस्टली पेसिमिस्टिक होते हैं. और आपके पास क्या हो जाते हैं? सबर आ जाते हैं, रिजिड आ जाते हैं. मोस्टली थिंग इफ़ दे टेक द डिसीजन देर इज़ द नो लेवल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी. Mostly they are anxious about the thing, about their future as well as their past, etc. And the most important thing in their personality that they are mostly moody individuals. If they are in the happy mood, they perceive the whole world is the happy, but whenever sometime if they are in the sad condition, they perceive that the whole people should be whole people should be weep, cry, etc. because of this sadness. यानी सादे अल्फाज में आप ये कहो कि ये समझते हैं कि the world is like a drawing book and according to their own choice they want to fill color in it. That is impossible. All of you know very well कि ये impossible है, क्योंकि दुनिया जो है ये ड्राइंग बुक नहीं है. इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कलर फिल नहीं कर सकते. जबकि इंट्रोवर्ट ये चाहते हैं, मूडी होते हैं, ये चाहते हैं कि इस वे से ये इसके कलर को जो है वो फिल करें. अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास आ जाते हैं दैट इज़ द स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल. अगर हम देखते हैं तो स्टेबल जो है उनकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं? दे आर पैसिव होते हैं, केयरफुल है, थॉटफुल है, पीसफुल.
they have controlled, reliable, even tempered as well as the calm. ठीक है, यानी दे आप इन्हें कह सकते हो कि ये लाइफ में पुरसुकून होते हैं, स्टेबल। ये कोई अगर डिसीजन लेते हैं तो उस पर कायम रहते हैं। वाइल ऑन अदर हैंड द लास्ट आई मेंशन दैट इज़ द यू कैन से अनस्टेबल। तो अनस्टेबिलिटी में मोस्टली उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती हैं, टची होते हैं। टची इन द सेंस यहाँ पे आ जाएंगे कि उनकी लाइफ में ना लाइफ सर्कल जो है वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके साथ वो बहुत टची अटैच होते हैं, और उसके अलावा वो ब्रॉडर में जाना जो है वो पसंद नहीं करते। रेस्टलेस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एक्साइटेबल हैं, चेंजेबल इन दिस सेंस कि उनकी लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी। देखिए, एक तो आपने पढ़ा था ना, टू सम एक्सटेंट ह्यूमन बीइंग शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपने उस लेकिन हमारे पास क्या आ जाता है कि इनके अंदर ना इनकी अपनी कोई भी ज़ात नहीं होती है। चेंजेबल इन दिस सेंस आते हैं, ये कोई डिसीजन कहते हैं तो उसमें जैसे नहीं होता है डामाडोल हो जाना, उन्हें ये नहीं पता होता है कि इधर इट इज़ द राइट, इधर इट इज़ रॉन्ग एटसेट्रा, ये क्या डिसीजन लें। उसके बाद इम्पल्सिव होते हैं। तो इम्पल्सिव मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्पल्सिविटी आपके पास ये होती है कि टू रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर इम्पल्स रादर देन यूजेस योर कॉग्निशन एटसेट्रा। उसके अलावा ये आ जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एज वेल एज एक्टिव। लेकिन एक्टिव यहाँ पे आप इसको किस सेंस में लोगे कि दे लुक बिजी बट डू नथिंग। ठीक है, यानी ये कंटिन्यूसली आपको लगेगा कि दे आर डूइंग समथिंग, बट इन रियलिटी इफ़ यू असेस देम they are nothing or they are doing nothing. While in detail when you are going to discuss about its stable versus unstable according to Eisner, तो इसमें हमारे पास आ जाता है increasing level of instability means for the Eisner increasing level of neuroticism। यानी जब उनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनका लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। Let us imagine that we have to cross a narrow wooden bridge, let's say 1 meter wide without handrails. The bridge leads over an abyss 15-meter deep. 1 meter wide is quite convenient. One does not need to be a tightrope dancer to set the foot the right place. Only the situation requires a certain concentration. Our brain will receive the signal that now it may well turn off to dream program and concentrate a bit. Then most will pass the bridge concentrated but stable. सो सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो आ जाता है जब हम अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उनका मेजर चीज़ ये होती है दे आर अनएबल टू फोकस और कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन देयर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, यानी वो अपनी लाइफ में जो है ना कोई भी टास्क वगैरह जब वो सेटल करते हैं तो दे आर अनएबल टू फोकस और कंसंट्रेट ऑन इट। अच्छा, इसके साथ हम लोग इसके ऑपोजिट आपके पास आ जाता है कि स्टेबल जो आ जाता है द स्किल स्टेबल अनस्टेबल रिप्रेजेंट अ डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म। एन अनस्टेबल पर्सन इज करेक्टराइज बाय हाई डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म। प्रीवियस में भी हमने ये डिस्कस किया दैट अ पर्सन इज अ न्यूरोटिक इन आइजनिक सेंस डू नॉट मीन दैट द एक्चुअली हैज़ द न्यूरोसिस। It is just means that the such person are the more likely to get one because their innate alarm system is more sensitive and efficient than other people। यानी यहाँ पे इन्होंने न्यूरोटिसिज्म को एज स्पेसिफिक जो है वो डिसऑर्डर में इतना नहीं लेके गए हैं, बल्कि यहाँ पे उन्होंने न्यूरोटिसिज्म बात की है कि अगर एक इंडिविजुअल अनस्टेबल आता है तो उसमें लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म इंक्रीज़ हो जाता है और न्यूरोटिसिज्म न्यूरोसिस की फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाता है उनकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा जो है वो फियरफुल हो जाना आ जाता है। और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, उसका एक पहला पर्सनैलिटी फैक्टर आपने पढ़ा इंट्रोवर्सिस वर्सेस एक्सट्रोवर्शन, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल, और थर्ड इसका था दैट वाज लेटर टाइम पीरियड में आइजनिक ने इस पे काम किया था, दैट वाज नोन एज द साइकोटिज्म। और साइकोटिज्म में स्टार्ट में उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन थे। ठीक है, थर्ड जो है विद द पैसेज आफ्टर सम टाइम इंटरवल इसने किया था।
Similar as it is the case that neuroticism high scores on psychotism does not mean that the test person is psychotic or necessarily will be in the future. It only means that the share some personality trait with psychotic person and under unfortunate circumstance can develop psychosis. इसमें हमारे पास और क्या चीज़ आ जाती है, एग्जाम्पल इसकी कौन सी आ जाती है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेकलेसनेस आ जाता है, डाउनग्रेडिंग एंड कॉमन सेंस एंड इनअप्रोप्रिएट इमोशनल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं. Some have found that the people with the high score are psychotic also often have hostile, उनका बिहेवियर आ जाता है, कल्चरल नॉर्म एंड अथॉरिटीज़ को फॉलो नहीं करते, दे मे सीम इमेच्योर एंड समवट इनसेंसिटिव हमारे पास आ जाते हैं. अच्छा, इसके अलावा आपके पास आ जाता है Eisner is known for this theory that high score on psychotism is precondition for creativity. लेकिन साइकोटिज्म को इन्होंने सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं लिया है. दे आल्सो सेड दैट कि ये हमारे पास समटाइम जो है वो प्री कंडीशन फॉर क्रिएटिविटी भी आ सकती है. वेयर ही अगेन स्ट्रेस दैट इट डज नॉट मीन दैट डिसऑर्डर दे ओनली हैव अ ग्रेटर रिस्क फॉर द डेवलपिंग सच डिजीजेस. This idea is often represented in popular way with the painter Vincent Van. इस चीज़ को that is not necessary for you, no need to discuss it. बस आप लोगों ने इसमें सिर्फ ये करना है कि बस it's enough for you. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के पास इसका मेजर कंट्रीब्यूशन आपके पास क्या आ गया. आइजनेक की थ्योरी आपने पढ़ी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, वो कौन था, उसने क्या काम किया, उसने पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन कौन कौन से असेस की. इफ़ यू आर गोइंग टू लुक इट्स हिस्ट्री, हियर यू कैन से इन 1985 रिवाइज्ड वर्जन ऑफ जी. तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट वर्जन था उसमें हमारे पास क्या आ जाते थे, तकरीबन 100 जो है वो क्वेश्चन थे, दैट वाज इन द येस एंड नो में थे. सेकंड जो हमारे पास वर्जन हुआ है उसमें 48 जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये इसका जो है वो शॉर्ट स्केल है. अभी लेटेस्ट उस पर जो है ये 48 आइटम वाला स्केल जो है वो इसका यूज़ होता है.